Did I talk about Stokes law? Did I tell about Stokes law? Stokes law. So, suppose we have some water in which we have dropped a ball. Some ball you have dropped inside the water. Okay. Now what happens is, on this, some drag force will be acting because this is going through a fluid, so there will be some resistance. That viscous force, how do we calculate that viscous force? Till now what we have seen? Till now we have seen what is viscosity, what is coefficient of viscosity. Okay. Now when this is going in the downward direction, this liquid will be offering some resistance to it. Okay. So which we are calling it as a viscous force. So that viscous force, basically as per Stokes law, we will say Fv is proportional to neta, R and V. Okay. Neta is proportional to these three parameters. Okay. Neta is the coefficient of viscosity, R is the radius, and V is the terminal speed. Okay. I will tell you what is the terminal speed. So here there is a constant of proportionality, which is 6 pi into neta into R into V. Okay. The constant of proportionality here is 6 pi. So if you remember while I was teaching about dimensional analysis, even then in one of my videos it is there, I established dimensionally the relationship between this force and these three parameters. You can, if you want, I will search and send that link to you, where we have dimensionally. This is an empirical formula. Okay. Empirical means based on observation, based on experiments and all those things. So the constant of proportion, this is the equation you have to remember. Okay? Now here there is a velocity term which is called terminal velocity. Terminal velocity. So what is terminal velocity? Now tell me, I'll take a similar situation. Suppose there is a road और यहाँ पे कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है? ट्रक इज गोइंग एट सम स्पीड. सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी. क्या ट्रक इमीडिएटली रुक जाएगा या आगे जाते रहेगा? थोड़े दूर तो जाएगा ना, इमीडिएटली नहीं रुक जाएगा. उसका अपना मोमेंटम है, उसका अपना मोमेंटम की वजह से थोड़ा और दूर जाएगा. इट विल गो टू फर्दर डिस्टेंस. नाउ व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स, you have physically stopped the truck, but the truck is moving because of its. Is there any external force acting on the truck? There is no external force acting on the truck. The truck is going because of its own momentum. ठीक है? Similarly, if you take a big tank, okay, this is the water, और इसके अंदर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को डाल दिया, ठीक है? तो पहले तो ये एक्सेलरेट करेगा, तेजी से जाएगा. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये धीमे 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 करके नीचे गिरेगा. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे, देखो जाकर. एग्री करते हैं? पहले तो ये किसी ने अगर स्विमिंग पूल में छलांग मारा हो तो उसको एक्सपीरियंस हो गया. पहले तो हम एकदम बुलेट की तरह नीचे जाते हैं, एक्सेलरेट करते रहते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा. ठीक है? वो जो कांस्टेंट स्पीड है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. इसमें क्या होता है, नो नेट एक्सेलरेशन, नो नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब नो नेट फोर्स इज देयर. ठीक उसी ट्रक की तरह, जो ट्रक पहले जा रहा था उसको तुमने ब्रेक लगा दिया, लेकिन वो और थोड़ा दूर चला गया विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. ओके. तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से गिरना शुरू करेगा. कहां से गिरेगा? बॉटम ऑफ द टैंक, बॉटम ऑफ द टैंक. ठीक है? तो वो स्पीड, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. उसको निकालना है. ठीक है? उसको निकालने के लिए क्या है कि लेट अस सी व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग देयर. ओके. ये वाला पेज ले लो. तो
इसके अंदर कोई मैंने ऑब्जेक्ट को डाल दिया, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को डाल दिया, बॉल को डाल दिया, स्फेरिकल बॉल को डाल दिया मैंने, तो इसका जो वेट है किधर एक्ट कर रहा है? नीचे एक्ट कर रहा है, राइट? ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो उस दिन मैंने बताया था, इट इज एक्टिंग अपवर्ड, बायोएंसी फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, एंड ये वाटर एक मीडियम से जा रहा है जो कि एक विस्कस है, विस्कस लिक्विड है, तो एक विस्कस फोर्स लगेगा, लाइक फ्रिक्शन, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर लगेगा विस्कस फोर्स, ठीक है? ये विस्कस फोर्स निकालने के लिए स्टोक्स ने एक इक्वेशन दिया है। तो अभी ये पहले नीचे गिर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, जब इट रीच्ड ए स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, अप एंड डाउन फोर्सेस गॉट मैच्ड, जब अप एंड डाउन फोर्सेस मैच करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट नहीं करेगा, नीचे से जो फोर्स है ऊपर से जो फोर्स है बैलेंस हो गए, अभी ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में, ठीक है? उसमें कोई नेट फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इज देयर एनी एक्सेलरेशन? इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, a is equal to 0. What is a is equal to 0 means? A is equal to 0 means v is equal to constant, isn't it? If the velocity is not changing, acceleration will become 0. That is the definition of velocity. That is the definition of acceleration. No? Acceleration means there should be change in velocity with respect to time. When there is no change in velocity with respect to time, velocity will be constant. तो वह कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा वो, ठीक है? सो यहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? एफ जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? एफ वी प्लस एफ यू, राइट? एफ यू मीन्स अपथ्रस्ट फोर्स, बायोएंसी फोर्स, पानी में डाल दिया तो बायोएंसी विल कम इनटू पिक्चर। देखो बायोएंसी का मतलब ये नहीं है, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा, कहाँ फ्लोट करेगा, कहाँ फ्लोट नहीं करेगा? जिस ऑब्जेक्ट को तुम इसके अंदर डाल रहे हो उसका डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा है तो वो नीचे गिरेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, ये जो है मान लो रो एस है, मान लो कोई सॉलिड है, रो एस, इफ रो एस इज मोर देन रो डब्ल्यू, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। Can I write rho s by rho w greater than 1? Rho s by rho w greater than 1, ये क्या है? Relative density है, relative density of solid more than 1, it will not flow, it will go inside. कितने को समझ में आया? जो ऑब्जेक्ट मैं पानी में डाल रहा हूँ उसका डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, तो वो पानी के नीचे जाएगा कि फ्लोट करेगा? ऑयल है, ऑयल फ्लोट करता है क्योंकि ऑयल का डेंसिटी पानी से कम है, उसका रिलेटिव डेंसिटी 0.8 0.7 होता है, तो वो फ्लोट करता है। मैंने आयरन बॉल को डाल दिया, आयरन का डेंसिटी क्या है? पानी से ज़्यादा है ना, 7.85 है, वो नीचे गिरेगा पानी में, वो फ्लोट नहीं करेगा, ठीक है? तो रिलेटिव डेंसिटी अगर मोर देन 1 है तो वो पानी के अंदर जाएगा, अगर लेस देन 0 है तो फ्लोट करेगा। less than or equal to 1 means it will float, okay? वो पानी में जाए या फ्लोट करे, विस्कस फोर्स भी लगेंगे उसके ऊपर, जितना वो सबमर्ज होगा उसके ऊपर विस्कस फोर्स भी लगेगा, उसके ऊपर अपथ्रस्ट भी लगेगा। मतलब ये तो फुल्ली सबमर्ज्ड है, ये क्या है? ये फुल्ली सबमर्ज्ड है। अगर पार्शियली सबमर्ज्ड भी होगा उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स तो लगेगा। जैसे तुम पानी के अंदर जाओगे, बायोएक्सियल फोर्स विल कम इनटू पिक्चर एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, okay? So now we have to write the terms here. What is Fg? Force due to gravity, okay? Force due to gravity means what? The weight of this. So what is the weight? M into G, M multiplied by G. अभी मान के चलो ये लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है और इसका डेंसिटी रो है, सॉलिड का डेंसिटी रो है, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है? तो लेट अस राइट इट नाउ।
This is m into g, mass into g. Mass is rho multiplied by volume. Mass is rho multiplied by volume. Can I write it as rho Vg is equal to viscous force. कितना है 6 pi beta r v, where v is the terminal speed. We don't know that, but some terminal speed plus v. FU का मैंने फॉर्मूला बताया था उस दिन, v multiplied by density of the liquid v sigma g, right? So what are we trying to calculate? We are trying to calculate terminal speed. So we'll put the values of v here. So if you bring this term this side, this becomes Vg into rho minus sigma. Am I right? What is the volume of this spherical object? 4/3 pi r cube, where small r is the radius of the sphere. Where small r is the radius of the sphere. What is this r? The radius of the sphere here. Okay? So just write the value there. 4/3 pi r cube g into rho minus sigma is equal to 6 pi beta r v. Right? Cancel the common terms. Pi 2 3s, 2 2s, r square. Okay? So what are we getting? V is equal to 2 by 9 r square g by beta rho minus sigma. This is the equation to calculate terminal velocity. You should remember this. Okay? This is a very important concept. Questions are asked on this. Numericals do come on this concept. Either remember this or remember the method. You need to see how I applied. Okay? So this is the equation for terminal speed. Okay? Remember this. Page 47, 2.8. A steel ball with radius r is equal to r 0.3 mm is falling with a velocity of 2 meter per second. Okay? So terminal speed is 2 meter per second at time t through a tube filled with glycerin having coefficient of viscosity 0.833 Newton second per meter square. Determine the viscous force acting on the object. What is viscous force? 6 pi beta r v. So 6 pi into 0.833. R is 0.3 into 10 power minus 3 into 2. Let's calculate that. That's the answer. So this is a very easy question. Okay? Just take care of the units. Page 48, example 2.9. A spherical drop of oil falls at a constant speed of 4 cm per second. Constant speed, terminal speed is given as 4 cm per second. In a steady air, can we have a terminal speed in air? Yes, you can have, because air also is a fluid. Don't think that water is only fluid or glycerin is a fluid. Air also is a fluid. Something is falling in atmosphere. Okay, it too can have a terminal speed. Clear? Even in air you can have terminal velocity. Don't think that in air you cannot have a terminal speed. So it is falling. Calculate the radius of the drop. There is some drop which is falling in air. The density of oil is 0.9 grams per centimeter cube. And density of air is 1 gram per centimeter cube. Okay? Beta is 1.8 into 10 to the power of minus 4 poise.
Neta is 10 power minus 4 poise. See, here you can work in CGS unit. Everything is given in CGS. You can work in CGS unit also, but you should take care of the units properly. If you are wishing to work in CGS unit, you should take the value of G as 981 centimeter per second square. It's your wish. Either work everything in CGS or work everything in SI. You can work everything in CGS and then convert to SI. It's okay. But you cannot use half of them in SI, half of them in CGS and make a khichdi. You are not supposed to make a khichdi out of it. So directly apply the formula now. So what did you ask to calculate? The radius. So V is how much? 2 by 9 r square G by beta rho minus sigma. Right? Just calculate now. So it is 2 by 9 into r square 4 square G is 981 divided by beta. Now poise is a CGS unit, I already told you in the last class. Poise is a CGS unit only. Okay? So 1.8 into 10 to the power of minus 4. This is 1 minus 0.9. Everyone understood? How did I put? Please calculate and tell me the answer. Okay? So here I get some kachra. This is r square. V is 4 centimeter per second. I got confused between this and this. मेरा बचपन में कभी कौवा बना होता था ना, मैं ऐसे बना था कौवा. दोनों कौवे में से एक कौवा मुझे कंफ्यूज कर दिया. ठीक है? So V is 4 centimeter. You have to find R. If you calculate this, you get R as 0.574. Simple maths you do at home. Okay? We are going to discuss about equation of continuity. You are able to see ना last page दिख रहा है ना? थोड़ा मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. Equation of continuity. So we are discussing about fluid dynamics. Obviously हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे पाइप में से पानी जाता है. Alright. So इसमें क्या है कि मान लो ये तुम्हारा इनलेट है, ये तुम्हारा आउटलेट है. पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है. ओके? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? There are no leakages, nothing is there. यहाँ पे हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि there is no friction, internal friction. पानी जा रहा है तो पानी का सरफेस और वाटर सॉलिड का सरफेस there is an interaction. पानी पाइप में से जा रहा है, पाइप एक मटेरियल है, तो पाइप भी तो कुछ फ्रिक्शन देगा ना पानी के लिए. वो सब हम लोग इग्नोर मार रहे हैं. ठीक है? इसको हम स्टेडी फ्लो मान रहे हैं, इसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान रहे हैं. तो हमेशा हम लोग कुछ एज्यूम करते रहते हैं. स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि तुम्हारा प्रेशर और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन पॉइंट पे चेंज हो सकता है. ध्यान से सुनो. स्टेडी फ्लो का मतलब है अभी तुम्हारा ऐसा कुछ है, अगर ऊपर से देख रहा हूँ कोई पाइप ऐसा है और फिर वो नीचे ऐसा पतला हो गया, तो स्टेडी फ्लो का मतलब है कि इस पॉइंट का जो प्रेशर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो इधर आ गया तो ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये कुछ दूसरा वैल्यू है. तुम देखो यहाँ पे पाइप मोटा है, यहाँ पे पाइप पतला है, तो यहाँ पे स्पीड कुछ होगा, यहाँ पे स्पीड कुछ और होगा. आप लोगों को कॉमन सेंस से पता है कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगा. वो हम लोग गार्डनिंग में वो पाइप में ऐसा you put a finger and try to do this, no? It goes with more speed. तुमने बेसिकली किया क्या? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो स्पीड ज़्यादा हो गया. तो स्टेडी फ्लो का मतलब ये नहीं कि हर जगह पे पॉइंट, हर जगह पे तुम्हारा स्पीड सेम होगा. नो, उस पॉइंट पे सेम होगा अलग अलग टाइम पे. क्लियर? नाउ हियर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, इधर से जितना वॉल्यूम हम वाटर एंटर किया, या अगर उसको क्या बोलते हैं, वाटर का जो भी मास है ना, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग वाटर को वॉल्यूम के इससे बात करते रहते हैं, है ना. अभी ये कोई सॉलिड तो है नहीं कि मास इधर है इधर से निकला बाहर, तो डेंसिटी तो कॉमन है ना. तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर कर रहा है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है. एम आई राइट? कैन आई से दैट मास इज कंजर्व्ड
मास इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब है कांस्टेंट, सिंपल भाषा में, भारी भारी टर्म्स मत देखो। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी किसी भी पॉइंट पे सेम था, ऐसा उसको समझा करो। तो जितना यहाँ से पानी गया अंदर उतना ही बाहर आया, ठीक है। तो यही बेसिस है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बेसिस यही है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म आता है, एक तो है तुम्हारा वेलोसिटी विच इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फ्लो स्पीड, कि पानी में पार्टिकल कितना स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे एक और टर्म है फ्लो रेट, फ्लो रेट। मैं थोड़ा किताब से बाहर जा रहा हूँ, इसको हम लोग दिखाते हैं क्यू से, इसको हम दिखाते हैं क्यू से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्लो रेट। तो फ्लो रेट जो होता है ये मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, यूनिट, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक सेकंड में जा रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक सेकंड में जा रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक सेकंड में जा रहा है। अगर मैं 20 मीटर क्यूब पर सेकंड लिख दूंगा, 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एक सेकंड में जा रहा है। मीटर क्यूब का लीटर का तुम लोग को रिलेशन पता होना चाहिए, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अगर एक डब्बा ले लोगे उसमें 1000 लीटर डाल दोगे, और डब्बे का वजन कितना होगा, 1 मीटर क्यूब होगा, 1000 लीटर। जो हम लोग बकेट यूज करते हैं ना बाथरूम में, उसमें 24-25 लीटर्स का बकेट होता है। 1000 लीटर मतलब कितना, इंटू 20, 20 बाल्टी वाटर अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 1 मीटर क्यूब का डब्बा बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, चलो चलो वो सब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। तो फ्लो रेट क्या है, अगर 20 मीटर क्यूब पर सेकंड बोल रहा हूँ मतलब 20,000 लीटर एक सेकंड में फ्लो कर रहा है। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फ्लो रेट एंड वेलोसिटी, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये क्या है, पार्टिकल का स्पीड है, वो सारे पार्टिकल का एक ही है, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग नहीं है, मतलब उस लेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो A1, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। यहाँ पे फ्लो का स्पीड V1 है मान लो, यहाँ पर फ्लो का स्पीड V2 है ना, फ्लो का स्पीड V2 है, फ्लो का स्पीड मतलब पानी का स्पीड इतना V2 है, ठीक है। अगर मुझे फ्लो रेट चाहिए, मुझे एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी से। फ्लो रेट अगर चाहिए तो एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी से, ठीक है, एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जितना पानी गया अंदर उतना पानी आया बाहर, तो मास सेम था। अगर मेरा यहाँ पे मास m1 है तो यहाँ पे मेरा मास m2 होगा, तो बेसिकली सेम होगा, सिंपल भाषा में। वैसे हम लोग पानी को मास में नहीं बोलते हैं, वी टॉक वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ओनली, ओके। तो ये नहीं बोल सकते कि 200 kg वाटर गया, तो मार्केट में जाके ये नहीं बोलोगे कि मुझे 20 किलो केरोसिन दो, वो देगा और डब्बा समोसा उठा करके तुम्हारे सर पे दे देगा। तो ये बोलोगे मुझे 20 लीटर केरोसिन दो, लेकिन लीटर क्या है, लीटर तो वॉल्यूम है ना। तो व्हाट इज m1, द करस्पॉन्डिंग रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू जी। यहाँ पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका वेट हो रहा है ना, और कुछ तो है नहीं। इसके अंदर तो मैं फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहा हूँ, फ्रिक्शन है ही नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने आई हैव टेकन अ आइडियल केस, आई टेकन व्हाट, आइडियल केस। सो रो v1 इज इक्वल टू रो v2 g। तो यहाँ पे हो सकता है कि रो1 रो2 अलग अलग डेंसिटीज हो सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी, यहाँ पे अलग डेंसिटी। So what are we getting basically? So here I can say कि यहाँ जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो मैं यहाँ पर एक ये क्रॉस सेक्शन के ठीक पास में एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, तो ये v1 स्पीड से जा रहा है ना, I will consider delta t time, I will consider a very very small amount of time, let us say 0.1 seconds, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में हुआ क्या, ये पानी यहाँ से यहाँ गया होगा, इधर जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो इस लाइन से इस लाइन तक गया होगा, यस सर नो। ये कुछ तो लेंथ होगा, कुछ तो लेंथ होगा ना ये। तो
इसको मैं बोलता हूँ D1। ठीक इस क्रॉस सेक्शन के पास में मैं दूसरा पतला सा एक सेक्शन लेता हूँ। इस सेक्शन को मैं बोलता हूँ P, इस सेक्शन को बोलता हूँ मैं Q। Q यहाँ पे यूज किया है ना, R बोलेंगे इसको, R। ठीक है, तो उतने ही डेल्टा टी टाइम में ये वाला सेक्शन में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो इधर से इधर गया होगा। पानी डेल्टा टी पानी क्या कर रहा है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है ना, पानी तो आगे जा रहा है ना सीधा। तो पहले वो यहाँ था, आफ्टर 0.1 सेकेंड वो इधर चला गया, आफ्टर 0.1 सेकेंड वो इधर से इधर आ गया होगा, ऐसे करते 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 वो यहाँ तक आ गया होगा। तो वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो in this small amount of time, what is the distance traveled? Can I say it is v1 into delta t? Here, speed multiplied by distance, speed multiplied by time, that is the distance water traveled actually. And what is the distance traveled here? It is v2 into delta t. Delta t is very small. Delta t is very small amount you are considering. Okay? जितना टाइम यहाँ कंसिडर किया उतना टाइम हमने यहाँ कंसिडर किया है। तो अभी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे इधर का मास चाहिए, कितना मास इधर मूव किया, कितना मास मूव किया, मतलब बेसिकली मुझे वॉल्यूम्स में बात करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ρ1 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो आई कैन राइट दिस एज A1 इंटू दिस लेंथ। व्हाट इज दिस लेंथ नाउ, V1 इंटू डेल्टा टी, V1 इंटू डेल्टा टी। This is equal to इधर ρ2 A2 V2 into delta t। Basically I am equating the masses, क्योंकि जितना मास गया उतना मास बाहर आया। मास कंजर्वेशन, ये डेरिवेशन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया। सो डेल्टा टी गॉन। तो व्हाट डिड यू गेट, ρ1 A1 V1 is equal to ρ2 A2 V2। Am I right? ρ1 A1 V1 is equal to ρ2 A2 V2। ठीक है, अगर मान लो ρ1 is equal to ρ2, पानी गया और पानी निकला बाहर, दोनों का डेंसिटी सेम, कैन आई राइट A1 V1 is equal to A2 V2, but can I say AB is equal to constant? लेकिन इसको मैं बेसिकली Q बोल रहा हूं, तो Q is equal to constant। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्या मतलब है, यहां पर जितना पानी गया अंदर फ्लो रेट उतना ही बाहर निकलेगा। तो अगर यहां पे मेरा एरिया क्रॉस सेक्शन वाज A1 एंड हियर इट वाज V1 एंड हियर इट इज A2 एंड V2, सो आई कैन राइट A1 V1 is equal to A2 V2। दैट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसके आगे एक और है, इज इक्वल टू A3 V3, इसके आगे कुछ और है A4 V4। क्लियर? So can you say that A1 is more than A2 here? A1 is more than A2? Am I right? A1 is more than A2. Let us check V2. V2 is equal to A1 by A2 into V1. V2 is equal to A1 by A2 into V1. Now A1 is more than A2, that means A1 by A2 is more than 1. So obviously V2 is more than V1. क्या तुमको क्या मिला, V2 is more than V1। ये तो हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही पाइप पतला हो गया तो स्पीड बढ़ गया। कितना को समझ में आया? अब समझ में आया क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि मास कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया अगर ज़्यादा हो गया तो स्पीड तुम्हारा कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन, this is the expression. Most of the cases your ρ1 is equal to ρ2, so A1 V1 is equal to A2 V2, or simply Q is equal to constant, or simply AB is equal to constant. Simply AB is equal to constant. Next topic is Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. This is the last topic as per the board and okay. अब बर्नौलीज इक्वेशन का क्या है, प्रिंसिपल क्या है। अभी तुमने मैंने केस बताया जहाँ पे पहले ये मोटा था फिर पतला हो गया पाइप। तो तुमने देखा कि
यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है, मान लो यहाँ पे 10 था तो ये 20 हो गया। एक रैंडम एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके। स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया। लेकिन एक्चुअली इसमें अगर जब प्रेशर मेजर किया गया तो जब स्पीड बढ़ा तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर कम था। तो जब ब्रॉडनिंग ऑफ पाइप हो रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, ब्रॉडनिंग ऑफ नैरोइंग ऑफ पाइप हो रहा है तो स्पीड इज इंक्रीजिंग बट प्रेशर इज ड्रॉपिंग। So this phenomenon was studied by Bernoulli, and he gave an expression: interlinking pressure and velocity. Interlinking pressure and velocity. Pressure and velocity यहाँ पे क्या है, उल्टा जा रहे हैं। स्पीड बढ़ रहा है तो प्रेशर ड्रॉप होता है एक्चुअली। तो देखो इसलिए तो स्पीड ज़्यादा है ना। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी कैसे तेज जाएगा, प्रेशर कम होगा तभी वो तेज जाएगा ना। नहीं समझे? कोई इधर से इधर भाग रहा है, मैं बहुत ही लेमन एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुम लोग समझो। कोई इधर से इधर भाग रहा है, यहाँ पे मैंने पतलू को खड़ा कर दिया, केस 1। कोई इधर से इधर भाग रहा है, यहाँ पे मैंने मोटू को खड़ा कर दिया। ये दोनों क्या कर रहे हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल वाले जैसा ऐसे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोला इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा कि इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, पतलू में स्पीड ज़्यादा रहेगा कि मोटू में स्पीड ज़्यादा रहेगा? पतलू में स्पीड ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा। फिजिक्स बाहर में सीखेंगे, बाहर में जाए फिजिक्स। पहले हम लोग कॉमन सेंस सीखेंगे, किधर स्पीड ज़्यादा होगा। क्या बोलते हैं थोड़ा मास्क को नीचे करके बोलते, फर्स्ट में स्पीड ज़्यादा रहेगी, तुम्हारा तभी ठीक नहीं है। हाँ, पतलू में स्पीड ज़्यादा रहेगा। पतलू भाई साहब कम प्रेशर लगा रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे दोनों का हाइट और ये सब में एक ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कोई अफ्रीका वाला और इसको कोई ऐसा मत समझो, कॉमन सेंस लगाओ। पतलू वाला दोनों ये कम प्रेशर इज नॉट एबल टू रेजिस्ट ना, तो वो ज़्यादा भागेगा, है ना। तो कुछ इस तरह समझो, तो स्पीड ज़्यादा रहता है तो प्रेशर कम रहता है। ये पतलू कौन है, पानी के अंदर का प्रेशर है, पानी के अंदर का प्रेशर है। पानी के अंदर भी एक प्रेशर होगा ना, 1000 बार पढ़ लिया हमने, है ना। पानी के अंदर का प्रेशर कैसे निकालते हैं, किससे हम लोग खेलेंगे 20 पे। चलो अभी टाइम का बाद में खेलेंगे, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि जब स्पीड बढ़ रहा है तो पानी का स्पीड कम हो रहा है। सो वी विल टेक, लेट अस से, वो क्या ऐसा बजाते हैं ना, ऐसा लग रहा है ना देखने में, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बजाते हैं ना, वो बजाने से हमारे बज जाएगी लेकिन वो बजेगी नहीं। यहाँ पे बहुत बजाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ शंख नहीं, ये शंख है क्या? तो लेट अस से दिस हाइट इज h2, this height is h1. Okay, I have taken a cross section. The flow is like this, the flow going on like this. Okay, so if this water is going from here to here, some work is done. अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, तो वर्क डन निकालते हैं, we find out that work done. So work done, यहाँ पर देखो पानी इसके अंदर से जा रहा है, we are not considering the friction offered by the pipe, we are not considering the friction offered by the pipe. तो यहाँ पे कौन से फोर्स एक्टिव है, यहाँ पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिव है। पानी जा रहा है तो पानी का कुछ मास है, वो पानी का मास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अगर मैं पानी को ऊंचाई पर रखूँ और उसको छोड़ूँ, वो नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे ऊपर से नीचे गिरेगा। वो नीचे से ऊपर भेजना है तो मुझे कुछ पंप लगाना पड़ेगा पानी को ऊपर भेजने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे व्हाट इज एक्टिव, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिव देयर। ग्रेविटेशनल फोर्स मींस बेसिकली वेट। तो यहाँ पर कुछ मान लो प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2। तो हमने काइनेटिक थ्योरी में भी देखा था वर्क डन कैसे आता है, P × डेल्टा V PdV। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पर प्रेशर कम है। यहाँ पे पानी को ऐसे धकेल रहा है, यहाँ पर अगर तुम क्रॉस सेक्शन ले रहे हो तो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा है, ऐसे। यहाँ पे प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा है, ऐसे। सो व्हाट इज द वर्क डन, डिफरेंस इन प्रेशर,
मल्टीप्लाइड बाय V. वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की वेलोसिटी है, V क्या है, PV, KTG में देखा था ना, डिफरेंस ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और प्रेशर इनटू डिफरेंस इन वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन। नाउ because this work done can be also calculated in another way. What is this work done? It is change in kinetic energy plus change in potential energy. यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, उसका पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रहा है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा, what I will get? I will get work done only. Okay? It's like this. यहाँ पे कोई ब्लॉक है, तुमने उछाला उसको बिल्डिंग के ऊपर, इधर से उसको फेंका या इधर ट्रैवल करके इधर आया, तो हर जगह पे क्या है, उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना। अगर इस पॉइंट का मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा, यहाँ से फेंका तुमने, इधर का डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिया, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिया, वही तो तुम्हारा वर्क डन है कि नहीं। इधर तुमने ऑब्जेक्ट की जगह पे पानी को उछाल दिया, तो अगर मुझे वर्क डन निकालना, कैसे निकालना होगा, आई हैव टू फाइंड डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन दैट इज योर वर्क डन। सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट। सो आई एम राइटिंग इट इन वन शॉट, P1 minus P2 into V is equal to, this is half M1 V1 square minus half M2 V2 square. Okay, now here I am considering not the total mass but per unit volume. What am I considering? I am considering per unit volume. मतलब M1 divided by 1 मान लो, M1 divided by 1 मान लो, क्योंकि पानी तो काफी ज्यादा वॉल्यूम में ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, मैं यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये M1 की जगह पर मैं ρ1 लिख सकता हूँ, M2 की जगह पे ρ2 लिख सकता हूँ। व्हाट इज ρ? M अपॉन V ना। अगर मैं V को 1 मान लूंगा तो M मेरा ρ हो जाएगा, तो हाफ ρ1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ ρ2 V2 स्क्वायर। आई हैव कंसीडर्ड हाउ मच वॉल्यूम? यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आई हैव कंसीडर्ड यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक, मैं पूरा वॉल्यूम को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। हाफ ρ1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ ρ2 V2 स्क्वायर, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी H2 है, यहाँ पर H1 है, mgh ना, so instead of m I have to put rho, rho g H2 minus H1. Can I write it like this? Rho g H2 minus H1. So यहाँ पर अगर मैं यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूँ तो मुझे इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। P1 minus P2 is equal to, मतलब ये वॉल्यूम को मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करते हैं, तो P1 minus P2 is equal to half ρ1 V1 स्क्वायर, ये पूरा इक्वेशन आएगा। यहाँ पर M1 V1 स्क्वायर आता था, M2 V2 स्क्वायर आता था, यहाँ पे V था, अगर मैं V से डिवाइड कर दूंगा, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, मैं यूनिट वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा हूँ। सो इफ यू अरेंज दिस इक्वेशन, यू गेट P1 माइनस, अच्छा तुमको ये P2 माइनस P1 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 I have to take. Okay, so just arrange this equation. If I am arranging this equation, I get P1 को उधर लेके गया, half ρ1 V1 square plus H2 is more than H1, so अच्छा मुझे फाइनल माइनस इनिशियल लेना था, थोड़ा सा गड़बड़ किया है। काइनेटिक एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल लेना था, सो फाइनल क्या है, M2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस ρ g
फाइनल माइनस इनिशियल, एंड यहाँ पर P1 को मैं ऐसे मान रहा हूँ, तो P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई B होगा, है ना, राइट? ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहा हूँ, तो डेल्टा के ई अभी तक फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, दैट इज डेल्टा के ई, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है, मतलब P1 P2 से ज़्यादा है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तुमको वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा B है, तो वो B से डिवाइड करो, तो M2 by B will become rho 2 and M1 by B will become rho 1. Okay, so I am removing this, I am writing here rho 2 and rho 1. If you arrange the equation, you get P1 plus half rho 1 V1 square plus rho 1 G H1 is equal to P2 plus half rho 2 V2 square rho G H2. Okay, ये दोनों इक्वल हो गया। इन जनरल टर्म्स P प्लस हाफ रो V स्क्वेयर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है बर्नौली एक्सप्रेशन। इसके बारे में मैं डिटेल में अगले क्लास में बात करूंगा। किसी भी पॉइंट पे इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है। तुम कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, किसी भी पॉइंट पे इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है। दैट इज योर बर्नौली एक्सप्रेशन। अभी टाइम हो गया है, अगले क्लास में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है।